السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ ادارے میں موجود مرد حضرات و خواتین اور الف ٹی وی کے ناظرین، آج کی اس مجلس میں میرا عنوان ہے سوشل میڈیا اور بچوں کی تربیت۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہیں پر اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ چنانچہ سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، تو یہ جو چیزیں ہیں جو عام ہیں اور یوٹیوب وغیرہ جن کے ذریعے ہمارے بچے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، تو آج کے اس ٹاپک میں انشاءاللہ ان چیزوں کے استعمال اور ان کی تربیت کا، بچوں کی صحیح تربیت کا جو قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا، جب یہ اولاد ہمارے لیے زینت بنے گی۔ اگر ہم ہماری اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ اولاد ہماری زینت بننے کے بجائے الٹا ہماری رسوائی کا سبب بنے گی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ذکر کیا ہے: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ہماری اولاد کو کی تربیت میں پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو جو تربیت کر رہے ہیں تو اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیں اور ان کو شرک سے روکیں۔ ذرا سوچئے، ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو فون تھما دیتے ہیں اور اسمارٹ فون وہ بھی تھما دیتے ہیں اور وہ اس میں جس انگلی پر چاہتے ہیں بٹن ڈھکتے ہیں اور معلوم نہیں کون سا ویب سائٹ کھل جاتا ہے اور پھر وہ اس کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جب ان کو مختلف تصویریں، مختلف موویز دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو بھی فون ہاتھ میں دینا پڑتا ہے۔ آج ہم اس قدر پہنچ گئے ہیں چھوٹے بچوں کو موبائل دے دے کر کہ جب تک ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیتے وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو کہاں ان کی تربیت ہوگی؟ جب ہم ان کو موبائل دیں گے اور وہ یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھیں گے
जो उनको पसंद है गेम खेलेंगे, तो फिर हम उनको तौहीद की तालीम किस तरह दे सकते हैं? उनके सामने तो मूर्तियों की फोटो भी आएंगी और उसके सामने तो नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले ये सब आएंगे, ये तमाम वीडियोस उनके सामने आएंगे और जाहिर बात है वो उन वीडियोस को देखेंगे और हम उनको रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जो बचपन से उनको आदत डाला है। तो इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हम आज से ही सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तर्क करें और उसकी जगह आज से 20 साल पहले 2210 में फेसबुक नहीं था और फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये चीजें जब नहीं थी, तो हमारे बच्चों की हम किस तरह तरबियत करते थे? जाहिर बात है कि उस वक्त हम उनको किताबें पढ़ाते थे, तो आज भी हम उनको किताबें पढ़ा सकते हैं। हम उनको जो तालीम के दिगर जराए हैं उनके जरिए तालीम दे सकते हैं। तो आज भी अगर हम चाहें तो फिर इनके नुकसानात से हम अपनी औलाद को बचा सकते हैं। और जिस तरीके से सलफ सालिहीन ने अपनी औलाद की सही तरबियत की, उस तरीके से हम अपने औलाद की सही तरबियत कर सकते हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने नक्शा खींचा है हर लुकमान की नसीहत का, कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के बारे में क्या दुआ कर रहे हैं? फरमा रहे हैं रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज कायम करने वाला बना। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना। आज देखा जा रहा है कि अक्सर मुसलमान अपने बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन दे रहे हैं, या कि उनको यूट्यूब के टीवी में या किसी और चीज में, लैपटॉप में यूट्यूब खोलकर दे रहे हैं और उनमें अपनी मर्जी के मूवीज देख रहे हैं। यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो रहा है तो भी उनको उसका एहसास नहीं हो रहा है और नमाज को छोड़ करके वो अपनी पसंदीदा मूवीज देख रहे हैं। तो इस तरह की अगर हम तरबियत करेंगे अपने बच्चों की, तो यकीन जानिए कि चंद सालों में हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह पाएंगे। अभी अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े बच्चे हैं, बड़ी उम्र के बच्चे हैं, शादी की उम्र के बच्चे या बच्चियां हैं, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके गलत ताल्लुकात कायम कर ले रहे हैं और अजनबियों से बात कर रहे हैं। अजनबी ही नहीं बल्कि गैर मजहब के नौजवानों से भी उनके ताल्लुकात हो जा रहे हैं और फिर वो इस्लाम से मुर्तद हो करके गैर मजहब को कबूल करके उनसे शादी कर ले रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। हम आंखें बंद करके अंधाधुंध अपने बच्चों के हवाले सोशल मीडिया कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे दीन इस्लाम से मुर्तद हो जा रहे हैं। दीन इस्लाम की तालीम नहीं मिल पा रही है और अगर हम उनको तालीम दे रहे हैं दीन इस्लाम की, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जो वक्त उनको मुताला में लगाना चाहिए था, जो वक्त उनको के कुरान करीम की तिलावत में लगाना चाहिए था, जो वक्त उनको अहादीस नबविया के पढ़ने में लगाना चाहिए था, वो वक्त तो गैर जरूरी कामों में लगा रहे हैं। जबकि हमको मालूम है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से हम उस वक्त तक हट नहीं सकते हैं। इब्ने आदम के पैर अल्लाह ताला के दरबार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि वो अपनी उम्र के बारे में अल्लाह को हिसाब न दे दे, अपनी सेहत के बारे में
अल्लाह को हिसाब न दे दे, अपने कीमती वक्त के बारे में अल्लाह को हिसाब न दे दे कि उसने अपनी उम्र को, अपने कीमती वक्त को कहाँ सर्फ किया है। तो जब तक ये हम हिसाब नहीं देंगे तब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने औकात की कदर करें। और आपको मालूम है कि जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन वही लोग होंगे अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, जो नमाजों की पाबंदी के साथ साथ अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने के साथ साथ अपने आप को बेकार बातों से, बेकार कामों से बचाने वाले हैं। क्या सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेकार नहीं है, ये अपने वक्त को ज़ाय करना नहीं है। ठंडे दिल से सोचिए तो इससे कोई खास फायदा हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, अगर यूट्यूब पे किसी शेख का बयान सुन रहे हैं और कोई इल्मी बहस देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन बहाना हमारे बच्चे बनाते हैं कि हम शेख की तकरीर सुन रहे हैं और इल्मी बहस देख रहे हैं, लेकिन बाद में उनको शैतान दूसरे चीजों की तरफ लेके जाता है और हम उसका ख्याल नहीं करते, बस हम फोन दे करके, लैपटॉप दे करके गाफिल हो जाते हैं। तो यकीन जानिए कि माँ बाप भी उसके मसूल हैं, जिम्मेदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यकीन जानिए कि नेक औलाद जिनकी हम सही तरबियत करने के बाद ही नेक बनेंगे, हमारी औलाद उस वक्त नेक बनेगी जब हम उनकी सही तरबियत करेंगे। ये हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदक़े जारिया कब बनेंगे, जबकि हम उनकी सही तरबियत करेंगे, दीनी तरबियत करेंगे और वो फिर दीन पर अमल करते हुए, नमाजों की पाबंदी करते हुए, कुरान करीम की तिलावत करते हुए, अस्कार की पाबंदी करते हुए जब हमारे लिए दुआएं करेंगे तो सदक़े जारिया बनेंगे। अगर हमारी औलाद सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बिगड़ गई और उसकी हम सही तरबियत नहीं कर पाए तो यकीन जानिए कि हमारी औलाद हमारे लिए सदक़े जारिया बनने के बजाय वबाल जान बन जाएगी, हमको जहन्नम में लेके जाने वाली बन जाएगी। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और आगे नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया इन्नहा इन तक़ु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्ज़ याती बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी गुनाह तुम किसी चट्टान में छुप कर करेंगे या आसमानों में या जमीन के अंदर घुस करके करेंगे तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लाएगा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बारीक से बारीक चीज के बारे में खबर रखने वाला है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ और ये एहसास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजरों से हम गायब नहीं हैं, हम कहीं भी रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हमारे साथ हैं। हम जो भी खैर का काम कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम गुनाह का काम कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम अपनी बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि देखो बेटो, देखो बेटियों, कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह ताला के सामने हैं, आपको अल्लाह देख रहा है। ये नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गया, आपके हाथ में लैपटॉप आ गया और आप उससे गंदे मूवीज देख रहे हैं, आप उससे हराम चीजें देख रहे हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नहीं देख रहा है। ऐसी बात नहीं है, आपके एक एक अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के देखने का एहसास, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिर होने का एहसास हमको अपनी औलाद के अंदर पैदा करना है।
जब हम ये एहसास, ये शऊर उनके दिलों के अंदर बिठाएंगे तो फिर उनको हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह, अगरचे वो तन्हाई में क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से वो गुनाहों से बचेंगे और बुरे कामों से बचेंगे और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचेंगे। इसी तरीके से बच्चों को बेहतरीन अखलाक सिखाने की जिम्मेदारी, बेहतरीन आदत सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत लुकमान के बारे में बताया, उनकी नसीहत का और जिक्र करते हुए कि हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। कि ऐ मेरे बेटे, तुम अपने रुखसार को मत मोड़ो लोगों के लिए, यानी कि नाक भाव मत चढ़ाओ और नहीं जमीन में अकड़ कर मत चलो। बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तो ये बेहतरीन अखलाक की तालीम देना, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने औलाद को बेहतरीन अखलाक की तालीम दें। यह उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि हम अपनी औलाद को अपने सामने लेकर बैठेंगे, उनके सामने कुरान की तिलावत करेंगे, उनके सामने कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, उनके सामने कुरान का माना मतलब बयान करेंगे। अगर हम उनको सोशल मीडिया में मशगूल करके हम भी खुद सोशल मीडिया में मशगूल हो गए या हम किसी और काम में मशगूल हो गए तो यकीन जानिए कि ये सब अखलाकी तरबियत हम उनकी नहीं कर पाएंगे और हमारे बच्चे या तो वो अपने दोस्तों से सीखेंगे, गलत किस्म के दोस्तों से, और उनसे राय मशवरा करेंगे और फिर उनके राय मशवरे पे अमल करेंगे। नहीं तो मूवीज में जो चीजें देख रहे हैं, मारधार की चीजें देख रहे हैं, बद अखलाकी, बद तहजीबी देख रहे हैं, गाली गलौज जो देख रहे हैं, उसी की नकल करेंगे। और आज अक्सर देखने में ऐसा ही आ रहा है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप के साथ गलत सलूक कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी दीनी तालीम और तरबियत नहीं दी। हमने उनको महंगे महंगे स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलाया और उनको आजाद छोड़ दिया। वो तालीम के नाम पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे, लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगे, फेसबुक पर दोस्तियां करने लगे, इंस्टाग्राम के हीरोज के फॉलोअर्स बनने लगे और जो चीजें दुनिया में बेहयाई की आम की जा रही हैं, बद अखलाकी की जो चीजें आम की जा रही हैं, उसके पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से वो माँ बाप की कदर नहीं कर पा रहे हैं। और माँ बाप जब बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनको बोझ दिख रहे हैं, उनके साथ तो हुस्न सलूक करने के बजाय उनको ओल्ड एज होम में डाल दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की तरबियत है जिसकी वजह से आज हमारी नई नस्ल बिगड़ रही है। तो इसलिए अगर हम अपनी नई नस्ल को सुधारना चाहते हैं तो हमें खुद इस्लामी तरबियत करनी होगी अपनी औलाद की। अपनी औलाद को इस्लामी तालीम सिखाना होगा, उनकी इस्लामी तरबियत करनी होगी, उनको अच्छे अखलाक बताने होंगे, उनको बुरे दोस्तों से रोकना होगा, उनको बुरी सोहबत से बचाना होगा। जब ही हम इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। यानी कि क्या तुम मौजूद थे जबकि याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई और उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यानी कि मर रहे हैं तो फिक्र क्या है, औलाद की फिक्र है। तो औलाद की तरबियत बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है कि एक नबी इस दुनिया से जा रहे हैं तो फिर अपनी औलाद की फिक्र कर रहे हैं, तरबियत की फिक्र कर रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम लोग मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे। उनको खदशा था कि कहीं मेरे बच्चे
मुश्रिकों की सोहबत में रहते हुए बिगड़ न जाएं, ये भी शिर्क में मुब्तला न हो जाएं, क्योंकि अक्सरियत मुश्रिकीन की है। तो इस वास्ते अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम लोग मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे। आज जबकि अक्सरियत बिगाड़ की शिकार हो गई है, तो ऐसे वक्त में तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी आज होती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें और उनकी तरबियत से किसी भी वक्त गाफिल ना हो। यहाँ तक कि मौत के वक्त भी हमको एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद तौहीद पे कायम रहेंगे या नहीं, सीधे अखलाक पे कायम रहेंगे या नहीं, दीन पे कायम रहेंगे या नहीं, इसकी फिक्र हमको करनी चाहिए। और इसकी फिक्र उसी वक्त कामयाब हो सकती है जबकि हम सोशल मीडिया का सिर्फ एक हद तक ही इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के लिए नमूना बने। आज सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी बुराइयां मुआशरे में जन्म ले रही हैं। चुनांचे जहां पे सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है यूरोप और अमेरिका, वहां पे बहुत सारी अखलाकी बुराइयां आ गई हैं। वो लोग मायूसी के शिकार हो रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में भी जिन घरानों में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे बड़े और बच्चे मायूसी के शिकार हो जा रहे हैं। खुदकुशी करने पर उनको ये चीज उभा रही है। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो उनको खुदकुशी करने पर उभा रही है, बुराइयां उनके अंदर पैदा कर रही हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं और एक नशा के तौर पर उसकी लत लग रही है। जब उनके हाथों से फोन छीन लिया जा रहा है, लैपटॉप छीन लिया जा रहा है, तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी तबाही है जिसका एहसास आज यूरोप और अमेरिका वालों को हो चुका है और वो लोग अब अपने बच्चों को फोन से दूर कर रहे हैं। आज हमारी ये हालत है कि दिन में 25-30 मरतबा हम तलाशते हैं फोन कहाँ है, यानी कि इस कदर हमारी लत लग गई है, इस कदर हम फोन के नशे के शिकार हो चुके हैं और हमको देखा देखी हमारे बच्चे भी इसी लत के शिकार हो गए हैं। बेहतरीन से बेहतरीन किस्म के फोन उनको चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए जिसपे हर किस्म की सहूलतें हों और हर किस्म की नंगी चीजें जिसमें वो देख सकें बगैर किसी रुकावट के, और हम उनको तालीम के नाम पर ये चीजें मुहैया करते जा रहे हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका जहां से इन चीजों की शुरुआत हुई थी, वो लोग अब इन चीजों से अपने आप को बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया की खतरनाकी को और इसकी तबाही को महसूस करें और अपने आप को और अपने बच्चों को इससे बचाएं और हम बच्चों के लिए कुदवा और नमूना बने। अगर हम सिर्फ बच्चों को रोक दे रहे हैं तो ये बच्चे रुकने वाले नहीं, बल्कि हमको खुद भी अमल करना होगा, खुद भी हमें कुरान करीम की तिलावत करनी होगी, खुद भी हमको नमाजों की पाबंदी करनी होगी, खुद भी हमें दीन पर अमल करना होगा, खुद भी हमें अच्छे अखलाक वाला बनना होगा, खुद भी हमें गरीबों की मदद करनी होगी, खुद भी हमें अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम करने होंगे। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं कि घर में अफराद तो मौजूद हैं लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं, हर आदमी अपने फोन में लगा हुआ है, बाप अपने फोन में लगा हुआ है और बेटा अपने फोन में लगा हुआ है, बेटी अपनी फोन में मशगूल है, बीवी अपने फोन में मशगूल है। पहले टीवी के सामने रहते थे लेकिन अब फोन में ही वो सारी चीजें आ जा रही हैं। लिहाजा टीवी के सामने रहने के बजाय फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर आदमी कर रहा है और बिल्कुल करीब रहते हुए भी किसी को किसी की फिक्र नहीं। यहाँ तक के बीमार माँ बाप की फिक्र अब अपने उनके जवान बच्चे नहीं कर रहे हैं। उनको टाइम पे दवा देने की फिक्र, उनके खाने की फिक्र, किसी चीज की फिक्र नहीं है। वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो भी उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको तबाह कर दिया है। तो इसलिए सोशल मीडिया की खतरनाकी को समझना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कुरान मजीद में फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु
बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उनको चंद कलिमात के जरिए आजमाया तो उन्होंने उन कलिमात को पूरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं तुमको इमाम बनाने वाला हूं, लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की फिक्र थी, चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी अल्लाह ताला इमाम बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, आपको अपनी औलाद की इमामत की फिक्र है तो जान लीजिए कि मेरे अहद को यानी कि इमामत को जालिम नहीं पा सकते। क्या मसला मालूम हुआ कि अगर हम अपनी औलाद को इमाम बनाना चाहते हैं, मुत्तकी और परहेजगार बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना चाहते हैं, नमूना बनाना चाहते हैं, तो उनकी सही तरबियत करना जरूरी है। क्योंकि इमामत के हकदार अंबिया की औलाद भी नहीं हो सकते जब तक कि वो तौहीद पे न रहें, जुल्म से बाज न आए, शिर्क से बाज न आए। जालिम यानी कि जो मुशरिक है वो अल्लाह के इमामत को नहीं पा सकता है। तो जब तक हम अपनी बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे तो पता नहीं कि कल के दिन हमारे बच्चे मुर्तद हो जाएं, दीन से गाफिल हो जाएं, दीन से दूर हो जाएं और फिर वो इमामत के हकदार न रहें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तुम देखो तुम्हारी क्या राय है। क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अब्बू आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसे कर गुजरिए, आप करीब अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो इस आयत से ये बात मालूम होती है कि हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करना कि वो मुश्किल से मुश्किल औकात में भी हमारी इताअत करने वाले, रब की इताअत करने वाले बन जाना। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुझको ज़बह कर रहा हूं। वो भी नबी के बेटे, उनको मालूम है कि अंबिया का ख्वाब वही होती है, अल्लाह का हुक्म होता है, लेकिन इताअत का जज्बा कैसा है, फरमा बरदारी का जज्बा कैसा है। फौरन कह रहे हैं, फौरन मान ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे अब्बू आपको जो हुक्म दिया जा रहा आप कर गुजरिए। तो हमें अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करनी है कि हमारी औलाद अल्लाह के अहकाम के सामने अपने सर को झुका दे, हमसे बहस करने वाली ना रहे और हमसे बदतमीजी करने वाली ना रहे। तो इस तरह की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए नहीं हो सकती। सोशल मीडिया में जो चीजें आम होती हैं वो लाइक और शेयर बढ़ाने के लिए आम होती हैं और अक्सर वो बुरी चीजें होती हैं जिनके फॉलोअर्स मिलियंस हो जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं होती। जो अच्छी चीजें होती हैं उनके फॉलोअर बहुत कम होते हैं। बेहयाई की जो चीजें होती हैं, बेहयाई के जो वीडियोस होते हैं तो उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो इसलिए हम अपने बच्चों को इन बेहयाई के चीजों से रोकें और बचाएं और सिर्फ जरूरी इस्तेमाल की हद तक ही इजाजत दें, गैर जरूरी इस्तेमाल से अपने बच्चों को रोकें, वरना एक दिन हम पछताएंगे और फिर पछताने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दूसरी जगह कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यानी कि खुद भी हमको जहन्नम की आग से बचना है, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाना है। तो हमारी औलाद गलत काम कर रही है तो उससे रोकना है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर सोशल मीडिया से वो भाग जा रही है और चोरी, झूठ, जिना और इस तरह बेपर्दगी और दूसरे गलत कामों में मुलविस हो जा रही है तो फिर
यकीन जानिए कि हम तो जहन्नम में जाएंगे ही, हमारी औलाद भी जहन्नम में जाएगी, और हम उसको न रोक रहे हैं, न बचा रहे हैं, तो उसकी सजा भी हमको मिलने वाली है। जो अल्लाह के नेक बंदे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलात व ज़कात व कान इंद रब्बिही मर्दिया, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल को नमाज का और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के पास पसंदीदा थे। तो हम अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं तो पहले हमें उनको नमाज का हुक्म देना चाहिए, और फिर वो अगर साहब निसाब है, बड़े हैं, मालदार हैं, तो फिर ज़कात का हुक्म देना चाहिए। अगर वो बुराइयों में मुलविस हैं तो हमको उनको पाक करना चाहिए, गुनाहों से रोकना चाहिए, जब भी हम अल्लाह ताला के पास पसंदीदा होंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम सबअ सनीन, कि तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं, और वज़रिबू अलैहिम वहुम 10 सनीन, और जब वो नमाज ना पढ़े 10 साल के हो जाएं तो फिर उनको मारो, मार करके नमाज पढ़ाओ। तो ये जो तरबियत है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है, तो इस तरबियत को अपनाना ज़रूरी है। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरबियत कर रहे हैं, चुनांचे फरमा रहे हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ बच्चे मैं तुम्हें चंद बातें सिखला रहा हूँ, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुझे याद रखेगा, यानी कि तुम अल्लाह की इबादत में लगे रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हर शर से हिफाजत फरमाएगा। आज हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत से गाफिल हैं, कुरान और अहादीस से गाफिल हैं, तो शरीयत की तालीम से गाफिल हैं। तो इसलिए शैतान हमको और हमारी औलाद को मुख्तलिफ मैदानों में लेकर जा रहा है और फिर हम तबाही के दहाने पर पहुंच रहे हैं। और हमें अपनी औलाद से मोहब्बत करनी है, लेकिन मोहब्बत में इस कदर मुब्तला नहीं होना है कि उनको हराम कारी की इजाजत दे दें। चुनांचे अनस बिन मालिक कहते हैं, मा रअयतु अहदन कान अरहम बिल अयाल मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा किसी को जो सबसे ज्यादा अपनी औलाद पर मेहरबान हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। काना युक़ब्बिलुहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते थे, वह यहतज़िरुहुम, आप उनको गोद में उठा लेते थे, वह युलाइबुहुम, और आप उनसे खेलते थे, वह युअल्लिमुना, तो ये बात हमको सिखा रही है कि औलाद से माँ बाप को मोहब्बत होनी चाहिए और उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। ये नहीं कि हम फोन के हवाले उनको कर दें, हम सोशल मीडिया के हवाले उनको कर दें और हम खुद सोशल मीडिया के हवाले हो जाएं। तो इस तरीके से हमको देख करके ही हमारी औलाद तरबियत सीखेगी। हम उनके लिए उसवा हैं, कुदवा हैं, नमूना हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हमारी औलाद भी करने वाली है। तो इसलिए अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के नुकसानात से उनको बचाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद इस पर अमल करें, हम खुद दीनी तालीम हासिल करें, हम खुद नमाजों की पाबंदी करें, हम खुद सच बोलें, हम खुद झूठ से अपने आप को बचाएं, हम खुद गीबत और चुगली से बचाएं, हम खुद बड़ों का इकराम करें, हम खुद अपने माँ बाप का इकराम करें। जब हमको खुदवा नमूना के तौर पर हमारी औलाद देखेगी तो फिर वही आदतें वो अपनाएगी। हम खुद गरीबों की मदद करें, हम खुद मिस्किनों की मदद करें और हम खुद अपने औकात की कदर करें, हम खुद अपने औकात का सही इस्तेमाल करें, जब ही हमारी औलाद भी उनका सही इस्तेमाल करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल आलमीन हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमा और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फरमा। यकीनन इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, सही फ़ायदे हैं, सिर्फ उन्हीं तक
ہم کو محدود رہنے کی توفیق دے اور ہماری اولاد کو انہی تک محدود رہنے کی توفیق دے، اس کے غلط استعمال سے یا کہ وقت کو اس کے ذریعے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کی حالت فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔